नाज़रीन, वेलकम टू रियलिटी बाइट्स एट टोरंटो 360। हमारी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, हम बात करते हैं अपने आसपास के लोगों से। एक बहुत ही फेमस कोट है जो कहता है कि वर्ड्स आर फ्री बट इट इज़ हाउ यू यूज़ देम दैट मे कॉस्ट यू। इस कोट के साथ आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का प्रोग्राम हमारा है स्पीच पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। फ्रीडम ऑफ स्पीच कह लें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह लें। इसी हवाले से मैंने फेसबुक पे एक पोस्टर डाला था और आप लोगों की राय पूछी थी कि आपके ख़्याल से आपका पर्सपेक्टिव क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या, इसको हम किस तनाजुर में देखते हैं और हम क्या आम फहम क्या है, लोग क्या समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या। कुछ फीडबैक है जो मैं शेयर करूंगी यहाँ पे। नाज़रीन ने हमें क्या लिख के भेजा है, इंटरेस्टिंग है। अतिया लिखती हैं, टू मी द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्वेश्चन द स्टेटस को, टू रेज कॉन्शियसनेस फॉर द सेक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल प्रैक्टिस। सबा खान लिखती हैं, टू मी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ टू बी योर सेल्फ रादर दैन स्पीकिंग द माइंड्स ऑफ अदर्स और एक्टिंग बेस्ड ऑन वॉट पीपल इम्पोज ऑन यू। नबिया उस्मानी लिखती हैं, टू मी फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ अ राइट बट हाउ वन यूजेस इट shows their class and upbringing. That was a little tough. Kiran Anwar लिखती हैं, freedom of speech is to share your ideas regardless even if they are not accepted by the listeners. Yet it does not mean that you can be humiliating or abusive. Say what you feel like based on your experience or knowledge and not just to throw out your inner insanity. Imran Hijazi लिखते हैं, freedom is expression of speech are not really important until they are heard. Freedom of hearing is an important part as freedom of speech is. Salonia लिखती हैं, Salonia Qasim, I am going to keep it short. Freedom of speech means that you can speak your mind in a respectable manner without being rude or aggressive. It is okay to agree to disagree. There is no need to be angry. If you're sharing what is on your mind and the other person doesn't agree with you, it's okay. These days, people take freedom of speech as yelling, swearing, and being racist. There is a fine line between saying what you want and being respectable about it. Sayyid Mohsin Ali likhte hain, if we look up freedom of speech, it would come down to be defined as the right to express any opinion without censorship or restraint, which I believe is the modern definition but not necessarily right. To my utter surprise, despite being modern, it completely lacks objectivity. It is a person's just wish to express an opinion which is uninformed, one-sided, and doesn't add value. It would suffix the requirement of this definition but should rather be just a mere expression of frustration and not freedom of speech, which is what we mostly see around us that eventually transforms into phobias. If something such as freedom of speech needs existence, it should be an expression that adds value and is expressed with the intent to learn and understand, not just to shed one's frustration. शाजिया ने बड़े मज़े का कमेंट लिखा, ये बहुत अच्छा लिखती हैं शाजिया अफजल। इन्होंने लिखा है, आई विल टॉक अबाउट इट इन रेफरेंस टू द कम्युनिटी एंड कल्चर वी बिलोंग टू। इन पाकिस्तानी सोसाइटी इन पर्टिकुलर and South Asian societies in general, freedom of expression is a rare commodity. Women have specially been deprived of it for ages. Millions of girls are married off to complete strangers without anyone ever asking for their consent or approval. In marital relationships, again, the man of the house makes all the decisions and women folk quietly accept. This same attitude permeates through the whole fabric of society in the shape of complete intolerance of one group of people towards the other, in religion and political matters also. Freedom of expression, question mark है, फिर कहती हैं, what freedom of expression? I have no idea what on earth that is. Irfan Malik साहब लिखते हैं, freedom of speech has never been defined in any dictionary in true sense. Confused, meaning everywhere, everyone can have his opinion on it. Asfandiyar Wadiwala लिखते हैं, freedom of speech is guaranteed in our Canadian Charter of Rights and is granted to all Canadian citizens who are loyal and have Canadian values built in them, and for those who stand for Canada first, minus M103. And
इस पे फिर इरफान मलिक ने कमेंट किया है, तो ये एक डिबेट है। अगर आप मज़ीद कमेंट्स भी पढ़ना चाहते हैं तो डू विजिट अस ऑन रियलिटी बाइट्स का पेज है फेसबुक पे, उस पर सारे कमेंट्स और फीडबैक मौजूद है। अगर डेफिनेशन देखी जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या? डिक्शनरी ये कहती है, इट इज़ द राइट टू आर्टिकुलेट one's opinion and ideas without fear of government's retaliation on censorship or societal sanctions. The term freedom of expression is sometimes used synonymously but includes an act of seeking, receiving and imparting information or ideas regardless of the medium used. वो ये कह रहे हैं कि आप इस खौफ से आज़ाद हों कि गवर्नमेंट, कोई सेंसरशिप बोर्ड या कोई सोसाइटी या उसका प्रेशर आपको आपके ख्यालात का इजहार करने से रोक सके। ये कनाडा है, ये है डेफिनेशन। आइए जानते हैं कि क्या यही सिचुएशन कनाडा में भी है या नहीं है। इस डेफिनेशन के हिसाब से तो फ्रीडम एब्सोल्यूट है। हम अपने गेस्ट से आज जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र साहब, मोहम्मद ज़फ़र साहब, एक बहुत रीनाउंड लॉयर हैं, मल्टीपल केसेस विन किए हैं और बहुत क्रिटिकल केसेस थे जो इनके पोर्टफोलियो पे हैं। ये वो फेदर्स हैं जो बहुत मुश्किल से किसी लॉयर की हैट में होते हैं और इनके हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स हो गए, बहुत स्ट्रॉन्ग जाइंट्स हो गए जिनके अगेंस्ट केसेस रन किए हैं, फाइट किए हैं एंड विन किए हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ज़फ़र साहब, ये डेफिनेशन तो जनरल डेफिनेशन है जो मैंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की है, बट हमारा लॉ क्या कहता है इस बारे में? जी, इसमें बेसिकली जो कनाडा जो सेक्शन है वो कहलाती है सेक्शन 2B ऑफ द चार्टर राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्ट्स बेसिकली। सो दे गिव यू the all opinion expression including freedom of press and other media communication. So you can express your opinions, your statements without any fear, and you can do that, but there are some limitations. अच्छा. Yeah. So we have to see that first कि आपको पहले ये देखना है कि आप जो बात कर रहे हैं वो एक्सप्रेशन में तो आती है, लेकिन उससे किसी को हर्ट तो नहीं होता। उस जो वर्ड्स यूज़ करते हैं आप, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लोग बाग मीडिया पे बोल देते हैं कि जी गाली गलौज कर देते हैं, तो इथिकली और इमोरली जो है हम हर्ट करते हैं लोगों को। इसके अलावा हम ऐसी बात करते हैं जो कि कैनेडियन सोसाइटी अलाउ नहीं करती हमें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। बाज़ लफ्ज़ एक्सप्रेशन करते करते वो जो कन्वर्ट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं हेट स्पीच के अंदर। बट द पीपल उस वक्त जो है वो डज नॉट रिकग्नाइज कि भाई ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। लेकिन हमेशा बात करते वक्त आपको एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच हो या एक्सप्रेशन ऑफ आपकी ओपिनियंस हो, उसमें आपको अपने वर्ड्स को देखना होगा कि आप क्या कहते हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, राशिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, आप ये बता, इसका मतलब जो ज़फ़र साहब ने हमें बताया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आया एब्सोल्यूट है या नहीं कनाडा में, ठीक है, और हेट स्पीच क्या है, ये बताइए आप हमें। बिस्मिल्लाह। फ्रीडम ऑफ स्पीच कनाडा में, जैसे ज़फ़र भाई ने कहा, उसको आप अगर और बहुत ही सिंपल टर्म्स में देखें तो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि जहाँ एक तरफ आपका चार्टर इस बात को एक्सप्लेन करता है कि आपके क्या राइट्स हैं, यू कैन से वट एवर यू वांट टू से, बट एट द सेम टाइम यू हैव लिमिटेशंस। Section 1 of the Charter allows government to pass laws that limit free expression so long as the limits are reasonable and can be justified in a free and democratic society. ये तो बिल्कुल जो आपका ये तो चार्टर कह रहा है। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है, आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक गैदरिंग में एक लफ्ज़ है फायर, आई कैन से दैट, राइट, बट द वर्ड फायर आई कैन से, बट इन अ पब्लिक गैदरिंग इफ आई से, चांसेस आर कि वहाँ पैनिक हो जाएगा, स्टैम्पीड हो जाएगा, पीपल कैन गेट इंजर्ड, तो वो अलाउड नहीं है। अच्छा, वो अलाउड नहीं है। Okay. इसी तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बर्निंग ऑफ कैनेडियन फ्लैग्स
या नाजी मार्चेस इन जूइश नेबरहुड्स। और इसी तरह से आपको याद होगा कि 2005 में जो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून पब्लिश कर दिए थे डैनिश न्यूज़पेपर में, कैरिकेचर्स उन्होंने जो पब्लिश किए थे, उसके नतीजे में कितने राइट्स हुए और ऑलमोस्ट रिपोर्टेड अबाउट 200 कंफर्म्ड डेथ्स जो हुई हैं। तो ये अगेन दीज आर द लिमिट्स इन आवर कैनेडियन सोसाइटी। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद दैट कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट है, क्योंकि कम से कम मैं तो ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहना चाहूँगा जहाँ पर कोई लिमिट ही नहीं हो। तो आई थिंक दिस इज़ इन अ वे इट इज़ अ ब्लेसिंग। और टोटली ओपन, वैसे तो एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच दुनिया में भी कहीं नहीं है, लेकिन जहाँ सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट से आपको क्वेश्चन करना है और वो आपके पास लिमिट वहाँ पर आपको होना चाहिए, जिस तरह से चाइना या रेड कर्टन कंट्रीज में यू कैंट इवन आस्क द गवर्नमेंट एनीथिंग ओपनली। तो इसी तरह से उसके अपोजिट यहाँ पर आपको ये बेनिफिट है कि you can ask anything to the government. There is no limit to it. You can question You can question them. You can question through media, any sort of media. You can do it through combined groups. लेकिन आप की जो reasonable limits हैं ना, ये I think it's a blessing in this society. अच्छा, coming back, तो फिर ये जो सारी बातें आपने की हैं वो ही उन्हीं सब चीज़ों की ममानियत है जो कि हेट स्पीच के ज़ुमरे में आती है। Exactly. तो हेट स्पीच एक्चुअली बाय डेफिनेशन क्या होगी फिर? हेट स्पीच बाय डेफिनेशन तो ज़फर भाई बाय लॉ के जो क्रिमिनल कोड ऑफ जो कहता है वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि एनी स्पीच विच अटैक्स अ पर्सन और अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट सच एज रेस, रिलीजन, एथनिक ओरिजिन, सेक्शुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी और जेंडर, it's it comes in the hate speech scenario. अच्छा, अब now for discussion sake, जो जनरली ऑब्जर्व किया जाता है, ये आप दोनों से एक सवाल है मेरा, जो जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर जैसे हर मुल्क में होता है कि एक माइनॉरिटी ग्रुप होता है, एक मेजॉरिटी ग्रुप होता है, अब वो पॉलिटिकल टर्म्स में हो, वो रेस के टर्म में हो, वो रिलीजन के टर्म में हो, वो किसी सेक्ट के टर्म में हो, किसी क्रीड के टर्म में हो, बट माइनॉरिटीज़ एंड मेजॉरिटीज़ हर जगह मौजूद होते हैं। अब अगर मेजॉरिटी किसी को कहे, सपोज पाकी ही आप किसी को कह दे, तो वो एक रेसिस्ट टर्म हो जाती है, क्योंकि हम माइनॉरिटी में हैं तो हमको लगता है कि हमें टारगेट किया जा रहा है, या हमें एशियन कह दें या कुछ भी कह दें तो हमको लगता है वो रेसिस्ट हो रहे हैं। लेकिन हम पलट के बाज़ दफ़ा वाइट पीपल, वाइट रेडनेक्स बोलते हैं। नाउ इज दैट रेसिस्ट? या रेसिस्ट तभी होगा या हेट स्पीच तभी होगी जब हम एक माइनॉरिटी को टारगेट करें, और माइनॉरिटी पलट के अगर कोई ऐसी ही एक लेबल यूज करे मेजॉरिटी के लिए तो वो हेट स्पीच नहीं होती। हाउ डू यू डिफाइन दैट? बेसिकली द रेसिस्ट इज सेइंग दैट अगर आप किसी एक ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके खिलाफ जो वो वर्ड्स यूज करते हैं जो रेसिज्म के अंदर आते हैं, तो वो जो है हेट स्पीच होती है। तो वो दोनों तरफ हो सकती है? जी, दोनों तरफ हो सकती है, क्योंकि ये द कैनेडियन सोसाइटी इज़ नॉट अलाउड सच टाइप ऑफ रेसिज्म। इसमें सख्ती से मना है। ह्यूमन राइट्स कोर्स क्लियरली कहता है कि आप जो है वो अगर किसी के खिलाफ, जैसे कोई अगर आदमी के पैर टूटा हुआ है, किसी का हार्ट टूटा हुआ है, तो यू डोंट से लाइक दैट तेरा हार्ट टूटा हुआ है, तेरा पैर टूटा हुआ है, सो ये अलाउ नहीं है यहाँ पर। जी, एवरीबडी हैज़ इक्वलिटी राइट हियर। सो जब इक्वलिटी राइट देती है कैनेडियन सोसाइटी, सो यू कैन नॉट से लाइक कि भाई तेरी आँख ख़राब हो गई है, तेरा तू टूटा है, तो समथिंग लाइक दैट, दिस पीपल सेइंग लाइक दैट, तो वो जो है वो रेसिज्म में आता है। ओके, हाँ। अच्छा, अगर आप किसी आदमी को, जैसे फ़र्ज़ करें कि एक आदमी है वो डिसेबिलिटी पे है और आप उसे अकोमोडेट नहीं कर रहे, ये भी रेसिज्म में आता है। ओके, सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर आल्सो, सो यू हैव टू अकोमोडेट। हमारी सोसाइटी, कैनेडियन सोसाइटी जो है अकोमोडेट करती है ऑल डिसेबिलिटीज़ को और उनको इक्वलिटी राइट्स देती है। तो अगर कोई आदमी किसी को कहता है कि जी आप ये पाकी हैं, सो दिस इज रेसिज्म। या अच्छा, देखना ये होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच जो हमारी है, जिसको कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ऑफ योर स्टेटमेंट, योर ओपिनियन, उसमें और हेट स्पीच में ज़रा सा फ़र्क है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ज़रा सा फ़र्क है।
आपको कैनेडियन सोसाइटी ने, कैनेडियन चार्टर राइट्स ने आपको अलाउ किया है कि आप जो है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा वहाँ पे वर्ड्स यूज करते हुए सोचना चाहिए कि उससे कोई हर्ट तो नहीं हो रहा, कोई रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू पे तो नहीं जा रहे आप, किसी के ऊपर डिसेबिलिटी पे तो नहीं जा रहे आप, और किसी स्पेशल माइनॉरिटी ग्रुप को टारगेट तो नहीं किया हुआ आपने। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में कैनेडियन कोड है यहाँ पर। आप ज़फ़र साहब आपसे कंटिन्यू करते हैं, अभी हमें जाना है एक शॉर्ट ब्रेक पे। नाज़रीन, अगर इस वी विल फर्दर प्रोब दिस मैटर, अगर आप जानना चाहते हैं कि मज़ीद इसमें और क्या डिटेल्स हैं, सो डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक नाज़रीन। तो सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जी ज़फ़र साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जो क्रिमिनल कोड है उसकी सेक्शन 318, 319 एंड 320, इसमें जो है ना हेट प्रोपेगेंडा अलाउ नहीं है। अच्छा। सो इसमें बाकायदा पनिशमेंट है। अच्छा। सो अगर आप सेक्शन 318 में चार्ज होते हैं तो इसमें 5 इयर्स की इम्प्रिजमेंट है। ओके। और अगर आप जो है सेक्शन 319 में जो है पेनल्टी के साथ अगर आप जाते हैं इम्प्रिजमेंट के साथ, तो उसमें नॉट एक्सीडिंग 2 इयर्स। तो ये नहीं है कि कोई अलाउ कर दिया है। हाँ, कुछ जगहों पर एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है कि भाई आप अगर किसी के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं तो अगर वो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, यू कैन अलाउ दैट। अच्छा। अगर आपको प्रोटेक्ट करना है, अगर आप अपने इन आप गुड को फेथ में होना चाहिए। ओके। If you are in good faith, you can do that. But if you are not in good faith and you speak like, अगर आप किसी, जैसे फर्ज करें आप किसी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को कह रहे हैं कि ये आदमी गलत है, तो दैट्स फाइन। आप पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उस पर जो है जजेस जो है डिफरेंट व्यूज हैं। तो नहीं, जैसे अगर आप ही की बात से एक सवाल है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि XYZ इंसान सही नहीं है, इससे बचो, हाँ, क्योंकि ये मल्टीपल चीज़ों में एंगेज है, इससे हमें नुकसान है, ये और लोगों को भी स्कैम कर सकता है XYZ, तो अब उस XYZ के अगेंस्ट जो चार्जेस मैंने लगाए हैं उसके फैक्ट्स मेरे पास होने चाहिए प्रूफ करने के लिए। यस, यू शुड हैव एविडेंस कि ये आदमी इस तरह से खराब है। देन यू हैव टू टेल द पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। ये तो बात हो सकती है, लेकिन आपके पास अगर एविडेंस नहीं है और आप कहो जी ये आदमी तो खराब है, तो दिस इज नॉट गुड। ओके। तो ये आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो वो स्लैंडरिंग के ज़ुमरे में, स्लैंडरिंग एंड डेफेमेशन में जा सकते हैं। डेफेमेशन में आ जाता है। जी, तो ये है। ठीक है। स्लैंडरिंग एंड डेफेमेशन के अंदर फिर क्या डिफरेंट? डेफेमेशन में ये है कि हर आदमी को राइट है, अगर आपने उसके खिलाफ कोई बात की है तो और उसकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज हुई है, सो ही कैन गो फॉर दिस डेफेमेशन। तो यहाँ पे कनाडा के अंदर बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग्स हैं और बहुत सारे केसेस डिसाइड हो चुके हैं। अच्छा। तो उस पर डेफेमेशन जो है, डेफेमेशन का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि इफ समबडी अलेज यू एनीथिंग अगेंस्ट योर रेपुटेशन and you prove that your reputation is damaged because of this, so you have to get the defamation from this. Okay. Yeah. Okay. अच्छा राशिद साहब, आपने अभी जैसे एक एग्जांपल दिया था कि जो डेनमार्क में हुआ था, जो कैरिकेचर्स, जो ब्लास्फेमस कैरिकेचर्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए गए थे, नाउ दैट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो। उस सिनेरियो को आप कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिस कमिंग सितंबर वी आर मार्किंग, आई थिंक इट्स 12 years सिंस इट वाज दोज इमेजेस वर फर्स्ट पब्लिश्ड। और उसके बाद जितना वायलेंट प्रोटेस्ट, बाइकॉट्स एस्केलेट हुए, तो अबाउट 200-250 डेथ्स वगैरह हुई हैं। तो उसके नतीजे में दिस इशू रिसीव्ड अ प्रोमिनेंट मीडिया अटेंशन। जी। यहाँ तक कि डैनिश प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद ये कहा कि दिस कंट्रोवर्सी वाज द वर्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस इंसिडेंट सिंस द वर्ल्ड वॉर 2। तो अब जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि इस्लाम हैज़ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एनीकॉनिज़म, एंड हम किसी तरह से भी विजुअली डिपिक्ट नहीं कर सकते प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमेजेस को। तो इस कंट्रोवर्सी के बाद अब ज़रूरत तो दुनिया भर में है इस बात की
कि देयर शुड बी अ लिमिट ऑफ एक्सप्रेशन इन अ सोसाइटी, इन एवरी सोसाइटी, इन एवरी सोसाइटी। रिलीजियस टॉलरेंस हो, अब ये जब आप देखा जाए तो वहाँ पर आप जितना उस ज़माने में मीडिया में पब्लिश हुआ तो देखा ये जाता था कि बेसिकली इट वाज एन अटैक ऑन द मुस्लिम माइनॉरिटी लिविंग इन डेनमार्क। इसी तरह जितनी भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में जहाँ पर ये फ्रीडम है, वहाँ पर इसको अब दूसरी नज़र से देखने की ज़रूरत है। ये तो हो गई बात दुनिया भर की, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू कैनेडियन सोसाइटी, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद कि वी एज अ होल दिस सोसाइटी डू कंसीडर दीज थिंग्स। हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं अपने नेबरहुड में या अपने आसपास सोशली और जिस तरह से भी, जनरली तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगेन इसमें से कोई उठ के अगर ये कर दे तो फिर लॉ, जैसे कि ज़फ़र भाई भी इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो तो लॉ तो आपको प्रोटेक्ट करता है कि आप किसी भी किस्म की एक्सप्रेशंस को लेके आ सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट अनदर कंट्रोवर्सी। तो इस सोसाइटी में इस बात के लिए ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा इन्वॉल्व हों। देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस who you can do some volunteering or you can attend their events and stuff. I have a name here, it's very interesting. It's called Canadian Civil Liberties Association. Okay. CCLA.org. ये एक काफ़ी इनका बड़ा काम है। They do events all the time जहाँ पर ये इस किस्म की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेके जो चीज़ें अफेक्ट होती हैं हमारी पब्लिक को, उसके ऊपर ये अवेयरनेस पैदा करते हैं। अच्छा। दे डू द इवेंट्स ऑल द टाइम, बल्कि इनफैक्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक दे हैव एन इवेंट गोइंग ऑन विच इज़ कॉल्ड इवनिंग आउट फॉर राइट्स एंड फ्रीडम एट ड्रेक 150 डाउनटाउन टोरंटो में, which is happening on August 30th, 2017 at between 6 and 9:30 p.m. Okay. So I think we should all go there and we should more and more involved to understand and and create this awareness कि इससे जो भी कुछ problems हो सकते हैं। अच्छा, तो जो मैं समझ सकी हूँ कि there is actually a very fine line between expressing your opinion and being respectful and crossing that boundary and going into the zone where you might hurt somebody or be disrespectful. आपको अपनी बात कहनी है, आप कहिए, लेकिन इस तरीके से कहिए कि वो किसी को हर्ट ना करे या वो किसी को ऑफेंड ना करे। बट देन डोंट यू थिंक कि हाइपर सेंसिटिविटी ज़्यादा हो सकता है एक बात ऐसी चुभने वाली ना हो, लेकिन क्योंकि मैं हाइपर सेंसिटिव हूँ मुझे वो बात चुभ जाए। जी, इसमें जिस तरह से मैं इसको देखता हूँ ना, द वे इट इज़ अगर आप मेजॉरिटी को एड्रेस कर रहे हैं तो आप किस किस को एक्सप्लेन करेंगे। अगर ये चैप्टर ये सिलसिला होता है बिटवीन टू पीपल, अगर मैं आपसे कुछ बात कहता हूँ, कितनी भी हेटफुल बात करो, इवन इन कार्टून्स की एग्जांपल ले लें, और मैं आपके साथ 1-to-1 डिबेट में डिस्कशन में हूँ, if I say it was just a freedom of expression and I continue my argument by having some more proofs and stuff, आपके पास भी तो राइट है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच का, आप भी उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। यू कैन गो अप टू एनी लेवल, जितना आपकी स्पाइन के अंदर पावर है, यू जस्ट गो फॉर दैट। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू एड्रेसिंग अ मेजॉरिटी, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इट क्रिएट्स देयर चांसेस आर क्रिएट्स इस्लामोफोबिया, ब्लास्फेमस, और आप ह्यूमिलिएट कर रहे हैं उस माइनॉरिटी को। तो इसके लिए ज़रूरी तो है कि इसके लॉ के अंदर जो कि लॉ मेकर्स हैं उनको और हमारी सोसाइटी उनके साथ अपने इस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, ताकि कम से कम लॉ ऑन द लेवल ऑफ द लॉ वी शुड ऑल बी प्रोटेक्टेड। ओके, ज़फ़र साहब, आपने अभी कुछ नंबर्स लिए थे, सेक्शन 3191, सेक्शन 3192, ये हैं क्या? हमारे नाज़रीन को बताएंगे आप प्लीज़। ये बेसिकली जो कैनेडियन क्रिमिनल कोड है इसके सेक्शंस हैं। इसके तहत जो है वो पुलिस आपको चार्ज करती है, इसके तहत जो है इसमें आपका केस चलता है कोर्ट के अंदर, और जो जजेस हैं वो इस सेक्शन के तहत आपको जो है वो केस को प्रोसीड करके आपको पनिशमेंट देते हैं। ओके। तो ये तमाम वो सेक्शंस हैं जिसकी वजह से ये जो लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इस लॉ ने,
वरना तो लोग तो जो मर्जी कहते फिरें। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने एक केस है आर वर्सेस ओक्स। अच्छा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस इन कनाडा। अच्छा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो टेस्ट दिया है, थ्री आइटम्स हैं उसमें टेस्ट के। अच्छा। और वो ये कहते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स रीजनेबल लिमिट्स दैट आर फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैन टॉलरेट। अच्छा, कहाँ ओके। तक टॉलरेट कर सकते हैं आप और कहाँ के बाद फिर वो टॉलरेट नहीं होगा। दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा तो उसमें उन्होंने जो लिमिटेशंस बता दी गई हैं कि भाई आपने यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आती है, इसके बाद जो है आप उस जुमरे से निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। जी। तो लिहाजा जो है कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग भी हैं, बहुत सारे केस डिसाइड हुए, लेकिन सारी जितनी कोर्ट्स हैं आजकल पूरे कनाडा में वो उस केस को फॉलो करते हैं अच्छा, अभी तक। ओके। उसके बाद अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट में कि जो इसके अगेंस्ट हो या इसको उसने बाईपास किया हो। ओके। ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कैनेडियन सोसाइटी में, जैसे अभी एक साहब बात कर रहे थे कि भाई जो है वो मैंने वहाँ पे एक बैनर लेके खड़ा हो गया मस्जिद के सामने जी। कि जी ये मस्जिद के जो पेश इमाम है ये चोर है। ओके। सही है जी। और ये पेश इमाम साहब पैसा खा गए और ये कर दिया और वो कर दिया, डिफरेंट टाइप। वो मेरे पास आया और उसने कहा कि जी बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। पेश इमाम साहब आए, उन्होंने कहा जी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए अगर तो आपके पास प्रूफ है कि आपका पैसा, जो आपने पैसा नहीं खाया और वो जो आदमी कह रहा है वो झूठ है, तो आप उस पर डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। ओके, ये तो है प्रॉपर वे। ठीक है। लेकिन अगर उसके पास प्रूफ है कि आपने ये सब कुछ किया है, गड़बड़ की हुई है और वो ही कैन प्रूव दैट, तो वो खड़ा होकर सही कर रहा है, तो आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो वो एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच में आता है ओके, कि उसकी ओपिनियन ये है। ठीक है। आप लेकिन उसके पास एविडेंस है, एविडेंस है टू सपोर्ट हिज सपोर्ट करता है। लेकिन अगर उसके पास एविडेंस नहीं नहीं है है। सो यू कैन गो फॉर द डेफेमेशन केस। ओके, ये तरीकेकार है। ठीक है। नाज़रीन, इसी के साथ जाते हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे। वापस आते हैं तो इन्हीं तफसीलात के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। M जो मोशन पास हुआ था M103 उस पर बात करेंगे और अब उसके अगेंस्ट रिटेलिएशन जो आई है उस पर बात करेंगे। सो डोंट गो अवे, विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक नाज़रीन। मेरा आप दोनों मुअज़्ज़ज़ गेस्ट से एक सवाल है। जब हमारा चार्टर सेक्शन 1, सेक्शन 2 फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसकी लिमिटेशन के बारे में बात करता है, जब कैनेडियन क्रिमिनल कोड 31A, 3191, 3192 स्पेसिफिकली टारगेट करता है हेट स्पीच को और कि किसी आइडेंटिफाइबल ग्रुप के अगेंस्ट कुछ होना नहीं चाहिए, ये ऐसी कोई बात या ऐसा कोई एक्ट नहीं होना चाहिए जो कि पीस डिस्टर्ब करे। जब ये सारी प्रोविजंस मौजूद हैं हमारे चार्टर में भी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे लॉ में भी, तो फिर ये जो मोशन पास हुआ M103 फेडरल गवर्नमेंट में भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पहला सवाल मेरा। इसी के साथ मैं दूसरा सवाल सप्लीमेंट करूँगी कि अब जबकि ये पास हो गया है तो उसका जो आफ्टर मैथ है कि अब वो जो एंटी मुस्लिम प्रोटेस्ट है वो खुल के सामने आ गया है और अब स्कूलों के सामने जहाँ जुम्मे की नमाज होती थी, बच्चों की जमात होती थी, वहाँ सामने प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे बच्चे अनसेफ हो गए हैं। तो क्या ये मोशन पास होना ज़रूरी था? क्या इसकी ज़रूरत थी या इसने सिर्फ सिचुएशंस को एग्रवेट कर दिया है? कुरान के सफ़ाहत को जो औराक हैं उनको फाड़ा जा रहा है, उस शहीद किया जा रहा है। तो क्या कहीं हमसे कोई गलती हुई है कि हम ये मोशन ले आए हैं या ये ज़रूरी था? ज़फ़र साहब आपसे शुरू करते हैं, फिर राशिद आपसे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहली बात ये कि ये मोशन लाना ज़रूरी था या नहीं था। तो यहाँ कैनेडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मोशंस पहले भी आए, जैसे कि जूश का उनको प्रोटेक्ट किया गया है जी। तो इसको लाने पे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ,
रही बात कि इसके आने के बाद से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, देखिए प्रॉब्लम्स पहले से मौजूद थी। ओके। वो सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशली ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए यहाँ पे कुछ अगेंस्ट ग्रुप्स हैं जो बहुत कम हैं, माइनॉरिटी के अंदर हैं, क्योंकि कैनेडियन सोसाइटी अलाउ ही नहीं करती ऐसे लोगों को। ओके। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक एजेंडा लेकर आते हैं कि जब इस्लामिक जो सिचुएशंस हैं इस्लामिक, क्योंकि इस्लाम जो है बड़ी तेज़ी से जो है वो फैल रहा है, और जो पीपल अडॉप्ट इस्लाम्स इन कनाडा, इन यूएस एंड एवरीवेयर, तो वो जिस तेज़ी से फैल रहा है तो बाद लोगों को जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं, बाद लोग रिजर्वेशंस रखते हैं कि ये कैसे इतनी जल्दी जा रहा है। तो वो ग्रुप्स हैं। ओके। तो वो कोशिश करते हैं कि जी ये किसी तरह से इनके खिलाफ एहतजाज किया जाए, प्रोटेक्ट कर दें और ये कर दें। आई डोंट थिंक सो कि इससे हमारे बच्चे अनसेफ हैं, आई डोंट थिंक। लेकिन क्या है कि कैनेडियन सोसाइटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो, अगर कोई इस किस्म का वाक़या होता है और कोई आदमी किसी को जैसे किसी को टारगेट करता है, किसी के खिलाफ कुछ आवाज़ उठाता है और वो अंडर दिस सेक्शंस आती हैं हेट स्पीच के, तो राइट अवे हमारे लोग जो डरते हैं, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो, सो यू हैव टू कॉल 911 राइट अवे। ओके। यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा पैगाम है और इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई गलत बात है। बस ये है कि ये कह सकते हैं आप कि जो ये मोशन आया, इस मोशन के आने से अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कुछ हो रही हैं आजकल, तो वो इतनी ज़्यादा कोई अहमियत वाली नहीं है कि जिससे हम ये समझें कि हमारी जो है सेफ्टी प्रॉब्लम आ गई है कनाडा के अंदर। आई डोंट थिंक सो कि सेफ्टी प्रॉब्लम है। ओके राशिद, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करूँगी मैं। मैं जब बात कर रही थी तो प्रॉब्ली शायद मैं GTA के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी, लेकिन कनाडा, अगर हमें ये लगता है कि क्योंकि हमारी तादाद यहाँ ज़्यादा है तो ज़रूरत नहीं है या जो भी है, आप मुझे कैनेडियन पूरा कनाडा को दिमाग में रखते हुए बताइए कि क्या नेसेसिटी थी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ये बिल पास करने की, और क्या जो चीज़ें पहले दबी हुई थी, अच्छा था कि वी हैड हश्ड देम अंडर द कार्पेट, वो नहीं थी, अब वो सरफेस पे आ गई हैं। सो व्हाट डू यू से अबाउट इट? पहली बात तो ये है कि आई एम 102 ये 103 ये जो इस्लामोफोबिया का जो मोशन है, इसकी होने की या इसकी इम्पोर्टेंस की ज़रूरत को समझने के लिए पहले तो ये ज़रूरी है कि अगर ये ना हो इन अ लॉन्ग रन तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसको भी समझने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात ये कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन जनरल वी ऑल कैनेडियन आर पीसफुल सिटीजन्स, पीसफुल पीपल। तो ये भी आपकी जो बात है कि बात वो दबी रह जाती, वो भी एक हिस्सा है समझने की ज़रूरत कि इसके आने के बाद जो ये प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं और जो एक फेयर सा हो गया है कि आप हमें टारगेट किया जा रहा है, यही आपका क्वेश्चन है ना बेसिकली। तो आप पहले तो ये समझें कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होता। तो मैंने आपको आज जैसे कि बात की कि जो 12 ईयर्स अगो जो वाक़या हुआ, जिसके नतीजे में इतना कुछ एस्केलेट हुआ और ओवर 200 पीपल जो है वो कंफर्म डेथ्स भी हो गई। अब आप ये देखें कि हमारे नेबर में जो गवर्नमेंट अब आई है, उसके अंदर उसके आने के बाद किस किस किस्म के सिलसिले जो वहाँ शुरू हो गए। तो अगर कोई चीज़ लॉ में लिखी चली जाती है, उसके बाद आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। जैसे एंटी सेमिटिक लॉज के अंदर आप ये देखें कि जूइश नेबरहुड के अंदर कोई आप किसी इस किस्म के नाजीज़ के ग्रुप की आप कोई मार्चिंग नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे आप कर लें किसी और जगह पर और आप उसके ऊपर, लेकिन आप वहाँ नहीं कर सकते। आफ्टर दिस लॉ आप ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने भी जब ये लॉ लिखवाया, इसको जब इम्प्लीमेंट करवाया, किसी मोशंस के प्रोसेस से गुजरा होगा, उसके बाद वो लॉ बना, तो उस वक्त भी ये प्रोटेस्ट हुए होंगे, ऑन अ स्मॉलर स्केल हुए होंगे, बट हुए होंगे। तो ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मैं जिस तरह देखता हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जिसका हमें फेयर है। अब ये कहना
कि इनकी वजह से अब ये हो गया है, तो ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है। बहरहाल तो मेरा कहने का मकसद है कि लॉ का थ्रेशोल्ड होता है और उसके अंदर खेलने के लिए बहुत कुछ होता है लोगों के पास जो इस किस्म का एजेंडा रखते हैं। उनके लिए ज़रूरी है कि इस किस्म के लॉ हों ताकि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए और इस किस्म की चीज़ें जो पास्ट में हो गई हैं वो ना हो। स्पेशली वी आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस राइट नाउ, दिस वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू अ क्राइसिस राइट नाउ, स्पेशली फॉर इस्लाम, फॉर मुस्लिम्स एंड इस्लाम, जो कि कुछ लोग हैं जो कि pretend to be Muslims और वो जिस बुरी तरह से इस्लाम का नाम ख़राब कर रहे हैं, इसके नतीजे में पूरे माशरा हमारा ख़तरे में आ गया। तो आई थिंक इसकी जो बहुत सख्त ज़रूरत है और उसको होना चाहिए। ओके, ठीक है, दुरुस्त। अगर हम इस्लाम के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो ये तो हदीस है कि वो मोमिन नहीं जिसके हाथ और उसके ज़बान से दूसरा मोमिन महफूज ना हो। ठीक है, ये बात समझ आ जाती है। अब हमने बहुत बात कर ली, अब चार्टर की, हमने सेक्शन कोड की, क्रिमिनल कोड की, बट अगर हम डे टू डे और एक बहुत ही आसान सलीस ज़बान में बात करें तो हम लोगों को क्या मैसेज दें कि वो क्या दिमाग में रखें जब किसी दूसरे से इंटरेक्ट करें? आपका एक मैसेज क्या होगा हमारी आवाम के लिए, और अगर उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो वो रिएक्ट कैसे करें? इसमें आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वाकई ये बात सही है कि बहुत चार्टर डिस्कस हो गया और बड़ी टेक्निकलिटीज़ डिस्कस हो गई हैं। तो एक कॉमन एग्जांपल में मैं आपको कहूँगा, आई डोंट नो इफ़ इट्स अ गुड फिट। कुछ टाइम पहले, अबाउट 5 years ago, आई मेट अ फ्रेंड जिसका एक पार्किंग लॉट में एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया ओवर अ पार्किंग स्पॉट। वो काफ़ी एग्रीवेट हो गया और दे स्टार्टेड स्वेरिंग ईच अदर। उसके बच्चे गाड़ी में बैठे थे, ही वाज अ पाकिस्तानी मुस्लिम, सो अगेंस्ट अ वाइट गाय। तो वो काफ़ी एग्रीवेट हो गया एंड ही स्टार्टेड द वाइट गाय स्टार्टेड स्वेरिंग सम रियली सीरियस स्टफ एंड देन दिस गाय कॉल 911, the Pakistani guy called 911. He was new immigrant. तो उसने जब 911 को कॉल किया और उसने कहा कि ये मुझे इस तरह से हेट वर्ड्स कह रहा है और ही स्वेरिंग ऑन मी एंड दिस एंड दैट। टू हिज सरप्राइज 911 सेड कि स्वेरिंग इज ओके as long as he's not threatening your life. मतलब आप गालियां दे सकते हैं? गालियां दे सकते हैं as long as he's not threatening you. अच्छा, तो अगर आपकी ज़िंदगी को खतरा नहीं है। हाँ, तो अब ये चीज़ जो है, अब उसकी एग्जांपल आपको मैं एक और दूंगा। मेरे खुद के साथ एक वाक़या चाइना में हुआ कि हम किसी बात के ऊपर मॉल के अंदर मेरे एक दोस्त के साथ इनका कोई आर्गुमेंट हो गया और वहाँ पे इत्तेफाक से हमने थोड़ा सा वेस्टर्न हिसाब में थोड़ा बात स्वेरिंग तक चली गई। तो उसकी ट्रांसलेशन में अगर कुछ बात उसको समझ में आ गई, ही कॉल्ड द पुलिस राइट देयर एंड टू माय सरप्राइज पुलिस टुक ऑल ऑफ अस टू द पुलिस स्टेशन and had us sit down and ask us to either sort the matter out right now or we are all going to the court. Oh wow. So they said and then we had to apologize. I had to apologize. So वहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये चॉइस मैं आपके व्यूअर्स के ऊपर छोड़ देता हूँ कि वो कैसा फील करते हैं कि वो किस माशरे में ज़्यादा सेफ और कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मुझे तो बहरहाल वो बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है और वहाँ इस हद तक की जाती है कि यू कैंट इवन स्वेयर। इफ़ यू स्वेयर देन यू हैव टू अपोलोजाइज within the law limits. तो that was difference of the law. Yeah. ठीक है। ज़फ़र साहब आप बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा ने आर वर्सेस ओक्स केस के अंदर बड़ा क्लियर कर दिया है कि आप कहाँ तक टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, सही है। तो मेन चीज़ तो ये है। उसके जब आप उस टॉलरेशन से निकलते हैं सो यू हैव राइट टू सू हिम, यू हैव राइट टू कॉल अ पुलिस अगेंस्ट हेट स्पीच। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि आप हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच में फ़र्क है। हाँ, बाद लोग, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, वो झंडा लेके खड़ा है, कुतबा लेके खड़ा है कि जी इस पे ये लिखा है मौलाना चोर हैं, इस तरह की। अब जैसे फ़र्ज़ करें पुलिस अगर बुला भी ली जाए वहाँ पर तो पुलिस कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे वायलेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे पीस जो है कैनेडियन सोसाइटी की वो डिस्टर्ब हो रही है। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कैनेडियन चार्टर राइट्स के अंदर कि ये चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं तो यू बी चार्ज
अंडर द हेट स्पीच और समथिंग लाइक दैट, कि ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा ये पैगाम है हमारे लोगों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, जी जो हमारे पाकिस्तानी या देसी लोग जितने भी जी। जहाँ से भी आए हैं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को कैनेडियन बनाएं। अच्छा हम इस सोसाइटी में रहते हैं, जी हम पाकिस्तान से ज़रूर आए हैं, लेकिन हम इस सोसाइटी में रहते हैं। वी हैव टू अडॉप्ट दिस सोसाइटीज रूल्स एंड रेगुलेशंस। बिल्कुल अगर आप वही अडॉप्ट नहीं करेंगे और आपकी वही मेंटेलिटी है कि जी जब चाहा जिसको चाहा गाली दे दी, जी जिसको चाहा जब चाहा जो बोल दिया, जी ये नहीं चलेगा यहाँ पे, जी क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। जी यहाँ पे बोलने का है, आप बोल सकते हैं कि जी आपको डिसेंट है, आप किसी के साथ, आपको कंट्रोवर्शन है किसी के साथ, आप बोल सकते हैं, लेकिन उसको बोलने का इमोरली, इथिकली भी तरीकेकार है। फिर इन्होंने आपको इमोरली ये चार्ज तो नहीं करते आपको इमोरल बोलने से, इथिकली बोलने से आपको चार्ज नहीं करते ये, लेकिन आपकी अपनी रेपुटेशन खराब होती है उससे, जी जो मेन चीज़ है। जी ये चार्ज करते हैं आपको जब आप हेट स्पीच करते हैं, ये चार्ज आपको करते हैं जब आपकी बात से वायलेंस होता है, जब आपकी बात से क्रिएट होता है कि आप थ्रेट कर रहे हो, तो ये चार्ज करते हैं आपको, Okay. वरना आपको ये चार्ज नहीं अच्छा करते। तो जितना मैं समझी हूँ बेसिकली अगर आप किसी एक ग्रुप को टारगेट कर रहे हो तो वो हेट स्पीच है, अगर आप इंडिविजुअली करें तो वो हेट स्पीच के जुमरे में नहीं नहीं आएगा। आती। इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो तब तक टॉलरेट और किया जा सकता है इंडियोर जब तक आप किसी को थ्रेट उसकी जिंदगी को लेके नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज हाउ इट इज। अच्छा बहुत शुक्रिया जफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नहीं अब जो इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी है, वो हम में से किसी के पास भी नहीं थी, और आपने शेयर की और आपने आई एम श्योर हमारे नाज़रीन को भी बहुत पसंद आई होगी और बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है। थैंक यू राशिद फॉर बीइंग ऑन द शो। नाज़रीन आप आज का शो आपने देखा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने देखा था, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो था बी श्योर टू टेस्ट योर ओन वर्ड्स बिफोर यू स्पिट देम आउट। किसी को कुछ कहने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि अगर आपको वो कहा जाए तो आपको कैसा लगे। अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। डू राइट टू अस एट realitybites@toronto360.tv या हमें कॉल करें 4165002424 पे। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि वो मैटर करते हैं हमारे लिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अस्सलाम वालेकुम।